Hello students, I am Ashish Atal, Professor of Tourism. Students, today we are going to discuss one important topic from international tourism, that is tourism trend at international level. When we say trend in journal talk we mention use the word trend in terms of what is in fashion, what is going on. Like we say it is trending or it is in trend, the jeans is in trend. But statistically, the term trend is different. By saying that it is a trend, we mean a general direction in which something is developing or changing. So this general direction may be upward, it may be downward, or it may be sideways. By sideways we mean that it is erratic, it is going up and down and leading to no clear cut direction. Here you can see the different types of trends. The red line shows the downward trend, while the light green line shows the upward trend. On the other hand, the blue line shows the erratic or sideways trend. International tourism trend. International tourism trend includes a lot of things which can generally be categorized into macro and micro trend or inbound or outbound trend, but we will limit ourselves to the macro trends only. Before I discuss about the macro trend, let me tell you the difference between macro and micro trends. Macro trend generally deals with the tourist arrival, receipt, expenditure and departures. So it includes tourist arrival, tourist departures, tourist receipts and tourist expenditure. On the other hand, microtrend may include expenditure pattern, length of stay, mode of transport used, destination visited, etc. We will limit ourselves to the inbound tourism trend. By inbound tourism trend, we mean that we will discuss only about the tourist arrivals and the tourist receipt. Global tourism trend in arrival is the first topic we will discuss today. We very well know that the present situation in global tourism is created by pandemic COVID-19, and all destinations are recording negative growth in terms of arrival and receipt. However, the next year, the experts are very optimistic that we will rebound and the pent up demand will compensate for the losses made in 2020. In our discussion today, we will limit ourselves to the trends till 2019, because for the 2020 the data has still to come. The present trend analysis is based on data provided by UNWTO World Tourism Barometer. Trend we are going to discuss is world tourism arrival. World tourism arrivals means how many tourists have arrived in different destinations. When we say the arrivals, we do not count the heads. Actually, we count the footfall. It is done because of two reasons. First is that it is very difficult to count how many people have visited a destination. For example, a tourist may enter in India through Nepal, then he may leave for Sri Lanka, then he may come back to India again, and then he may go to Pakistan and come back to India again. Each time he enters through different port of entries. In that case, a single person is making 3 visits. So it is not possible to measure the number of heads, the number of people who have visited the destination. In this case, we measure the number of arrivals. There is another benefit of measuring the number of arrivals, because the number of arrival is directly related with the tourist expenditure pattern and not the number of tourists. So it is more rational to measure the arrivals rather than to measure the heads. International arrivals grew by around 4% globally in 2019 to reach to 1.5 billion. To be exact, it is 3.9% in 2019. But we are rounding up the figure because it is easier to remember the whole numbers rather than in other form, that is your fractional form.
there is around 54 million more tourist arrivals than the previous year, which is a substantial number. Uh, the growth was slower than the extraordinary growth rate of plus 7% in 2017 and plus 6% in 2018. In these 2 years, there was exceptional growth, but in 2019 we couldn't maintain this growth rate. Practically it is not possible to have such extraordinary growth rate every year. Otherwise, also there was economic slowdown in the European region. There were a lot of issues like Brexit, that is Britain is exiting the EU. Then there was global economic meltdown or slowdown. There were also geopolitical tensions in certain region of the world. The low growth rate was because of the Americas and Europe, that is the developed economies rather than the developing economies. On the brighter side, the growth in arrival outpaced the world economic growth, which grew by 3%. While the world economic growth was 3%, the actual growth in arrival was 3%, was more than 3%, that was 3.9%. Then we can say that this particular sector has outperformed the general economy of the world. रीजनल ट्रेंड्स मीनिंग क्षेत्रीय जो हमारे ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो इसने प्लस 7.5% ग्रोथ रेट के साथ पूरे ग्लोब को लीड किया. इट हैज़ लेड द ग्लोब with a growth rate of 7.5%, meaning that it had the highest growth rate in 2019. We are talking about 2019. हम 2019 की बात कर रहे हैं. उसके बाद नंबर आता है एशिया पैसिफिक का. एशिया एंड पैसिफिक रिकॉर्डेड अबव एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ प्लस 4.5%. तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, एशिया एंड पैसिफिक जो है कंसिस्टेंटली हायर ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करता रहा है ग्लोबल एवरेज से. यही कारण है कि उसका जो शेयर है वर्ल्ड टूरिज्म में वो लगातार बढ़ता जा रहा है. अगर वाइल अफ्रीका एंड यूरोप ग्रू इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, तो अफ्रीका और यूरोप लगभग उसी रेंज में है जिसमें जो वर्ल्ड एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है अराइवल्स में, विच इज़ 3.9%. उसके पास ही हैं ये लोग. इट इज़ 3.7%. सो इट इज़ नियर अबाउट. अमेरिकाज वर स्लोएस्ट विद द ग्रोथ रेट ऑफ 2%. अमेरिका की ग्रोथ रेट स्लो रही है और ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है. अगर हम पीछे का डाटा जब आने वाली स्लाइड्स में एनालाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अमेरिकाज की जो ग्रोथ रेट है खासकर 9/11 के बाद जो है काफ़ी धीमी रही है टूरिज़्म के मामले के अंदर. Talking about the growth percent region wise, growth percentage region wise, I have taken the data from 2016 to 2019, and then I have taken the average from 2009 to 19. टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया की बात करें तो 2016 में द ग्रोथ रेट या ग्रोथ परसेंटेज वाज 3.8%. In 2017 it went to 7.2%. In 2018 it went to 5.6%, and in 2019 it remained slightly on the lower side, that was 3.9%. While the global average from 2009 to 2019 was 5.1%, which is a very decent or above average growth rate for the global tourism. The region which has the hegemony or the lion's share in tourism, world tourism market, is Europe, and Europe recorded a growth rate of 2.5% in 2016. In 2017 it was an exceptional year for Europe. The growth rate was 8.8%, while in 2018 it maintained the momentum more or less. In 2019 its growth rate came down to 3.7%, while from 2009 to 2019 the growth rate was 4.6%,
which about the Asia Pacific region. The Asia Pacific region has shown a tremendous performance. In 2016, it was 7.7%. In 17, it was 5.7%. 18, it had 7.3%. In 19, it was 4.6%, and its average from 2009 to 2019 is 7.1%, highest in all the regions in and well above the global average. Americas have shown a slower growth rate. In 2016, it has a growth rate of 3.7%. Then it went to 4.7% in 2017. Then it came down to 2.4% in 2018. In 2019, it was just 2%, and the average 2000 from 2009 to 19 is just 4.6%. Africa also has shown a good record, uh, shown a good performance, especially in first 3 years, 2016 to 2018. In 2016, it had a growth rate of 7.8%. In 17, 8.5%. In 18, 8.5%. In 19, it came down to 4.2%, which was a little bit on the lower side, and the average from 2009 to 19 was 4.4%. As far as Middle East is concerned, it has shown an erratic trend. In 2016, it has a negative growth of minus 4.7%. In 2017, it had a growth rate of 4.1%. In 2018, it has a growth rate of 3%. Then in 2019, it shoot up to 7.6%, and its average from 2009 to 19 was just 2.7%. So its performance was lowest in terms of all the other regions of the world. From the data, we can conclude द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनसे जो हमारे पास डाटा था, जो हमने अभी डिस्कस किया, इससे हम कई सारे निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच टू मैनी कंक्लूजन्स। सबसे पहली बात है कि वर्ल्ड ग्रोथ रेट जो 2017 और 18 में थी, वो एक्सेप्शनल थी। उस समय इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर बूम कर रही थी, और जिसका सीधा सीधा असर जो है वर्ल्ड टूरिज़्म पर नज़र आया। इसके अलावा ये रीज़न ये भी था कि 2015 और 16 में जो स्लो डाउन था, उसके बाद जो पेंट अप डिमांड थी वो रियलाइज़ हो सकी 2017 और 18 में, बट ये एक्सेप्शनल था। ऐसा आप हर समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एशिया एंड पैसिफिक जो है, उसने हाईएस्ट ग्रोथ रेट मेंटेन की 2009 से 2019 के बीच में, जिसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि इस रीजन का मार्केट शेयर लगातार ग्लोबल टूरिज़्म में बढ़ता जा रहा है। और ये एक और रुझान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि जो टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन है, वो ट्रेडिशनल मार्केट यूरोप से हटकर अब नई मार्केट्स, नए डेस्टिनेशंस की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसमें एशिया एंड पैसिफिक उनका फेवरेट है। तो दे आर एक्सप्लोरिंग न्यूअर डेस्टिनेशन, दे आर नो मोर कन्फाइंड टू अमेरिकाज और यूरोप। तीसरी बात जो है कि अमेरिका में एक स्लो डाउन हमारे को देखने को मिलता है, जिससे उसका मार्केट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न जो है इसमें कि जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, जो अमेरिकाज के लिए है, मेन मार्केट्स जो अमेरिकाज में हैं, वो यूएसए और कनाडा है। दोनों ने अपने फ्रंटियर फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी टाइटन कर दिए हैं। दूसरा रीजन जो इसके लिए नज़र आता है हमें, वो है कि हमारा जो टूरिस्ट का रुझान है वो भी बदला है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अफ्रीका ने काफ़ी हाई ग्रोथ शो किया है रिसेंट ईयर्स में, और एक नया कंटेंडर है, और इसके भी ग्रोथ का मेन रीज़न यही है कि टूरिस्ट आर बोर्ड फ्रॉम विजिटिंग यूरोप एंड अमेरिकाज, दे वांट टू विजिट अ न्यूअर डेस्टिनेशन, दे वांट टू एक्सप्लोर न्यूअर places,
एंड जो नेचर टूरिज़्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, उसकी ओर जो एक जिसे पहले निश मार्केट समझा जाता था, एडवेंचर टूरिज़्म है भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और अफ्रीका नेचुरली इसके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन उभर के आता है फॉर एडवेंचर टूरिज़्म, फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, फॉर इको टूरिज़्म, ग्रीन टूरिज़्म एक्सेट्रा। तो अफ्रीका में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट में जो ग्रोथ है वो इरेटिक है। हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट जो है सोशो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली काफ़ी अप हेवल से गुजर रहा है। जो मिडल ईस्ट का रीजन है यहाँ पे ग्रोथ कोई क्लियर नहीं है, इरेटिक है। और इसका कारण ये है कि ये सोशो पॉलिटिकली ये रीजन अनस्टेबल है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, खासकर कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, इन कंट्रीज़ में सीरिया होगी। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो है हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जिससे मिडल ईस्ट रीजन जो है उसका कभी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, कभी एकदम ही लो डाउन हो जाती है। देयर इज़ अ इरेटिक ग्रोथ इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी in the region. There is another way of looking at the growth in world tourism, that is in terms of market share, how much it was previously and what it is now. I am taking the data from two different years which are apart by 20 years, in 1999 and in 2019. Both are part apart, both are दोनों के बीच में 20 साल की दूरी है। तो इन 20 सालों में क्या कुछ बदला है ये हम देखने के लिए हम डाटा 1999 का लेंगे और उसके बाद 2019 का लेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट शेयर में क्या बदलाव आया है। अब ये बदलाव मार्केट शेयर में जो है वो ग्रोथ रेट की तरह तो है नहीं कि एक साल के अंदर आ जाए, इसे समय लगता है और धीरे धीरे ये जो है चेंज होता है। तो इसलिए ये एक हमारे पास विश्वास करने लायक एक कॉन्क्रीट डाटा है जो बताता है कि कैसे जो है अलग अलग रीजन्स का मार्केट शेयर घट या बढ़ रहा है। और ये ट्रेंड एक ग्रोथ ट्रेंड या रिटार्डेशन की ट्रेंड की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि कौन सा रीजन जो है ग्रो कर रहा है, कौन सा रीजन है जो अपना शेयर लूज़ कर रहा है। तो इसमें अगर हम 1999 में देखें तो जो ग्रीन वाला शेयर है, ये ग्रीन वाला शेयर जो है यूरोप का है और यूरोप का शेयर 1999 में टूरिस्ट अराइवल में 59% हुआ करता था, यानी कि ऑलमोस्ट हेजेमनी थी इनकी, एकाधिकार था वर्ल्ड टूरिज़्म अराइवल के अंदर। 1999 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पीछे के एक डिकेड पीछे और जाऊँगा तो ये शेयर और बड़ा नज़र आएगा, बट मैंने 1999 से शुरू किया तो इट वाज 59%। अगर हम लाल वाला देखें तो एशिया एंड पैसिफिक के लिए है ये और इसका शेयर मात्र 15% होता था, जबकि डार्क ब्लू वाला जो है वो अमेरिकाज़ के लिए है। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को मिला के जो ग्रोथ रेट है वो 19% सॉरी ग्रोथ रेट कह रहा हूँ मैं, मार्केट शेयर जो है 19% हुआ करता था। जबकि येलो वाला जो है अफ्रीका के लिए उसका 4% और मिडल ईस्ट का 3% हुआ करता था। ये डाटा जो है 1999 का है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे को प्रेजेंट पोजीशन नज़र आती है, यानी कि 2019 में क्या सिचुएशन है। 2019 में जो हमारे को सिचुएशन नज़र आती है वो इस प्रकार है। जो ग्रीन वाला हिस्सा जिसे हम यूरोप का हिस्सा है वो 59% से घट के 51% रह गया है, जबकि जो एशिया एंड पैसिफिक है उसका हिस्सा 25% हो गया है, अमेरिकाज़ का शेयर 15%,
अफ्रीका का 5% और मिडल ईस्ट का 4%। मिडल ईस्ट का 4% काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सारे रीजन्स के अंदर सबसे छोटा रीजन है। आपको क्या अंतर नज़र आया? डिड यू नोटिस द डिफरेंस? हाँ जी, हमें ये डिफरेंस बड़ा ही बोल्डली नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। पहली बात यह है कि जो एकाधिकार है, एक छत्र राज था यूरोप का, वो डिक्लाइन पे है। और जो टूरिस्ट हैं वो नए डेस्टिनेशंस की ओर, नई जगहों की ओर जा रहे हैं। एशिया एंड पैसिफिक उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन रीजन के तौर पे उभर के आया है, क्योंकि ये वो रीजन है जिसने सबसे तेज़ी से अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी ग्लोबल टूरिज़्म के अंदर बढ़ाई है। इसके बाद जिस रीजन का नाम आता है वो है अफ्रीका और मिडल ईस्ट। ठीक है, इन्होंने भी एक जो है अपने हिस्सेदारी को थोड़ा बहुत ही सही पर बढ़ाया है। अमेरिका यूरोप की ही तरह है और उसने अपने हिस्से का काफ़ी हिस्सा जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है लूज़ किया है इंटरनेशनल टूरिज़्म में। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है ऐसा होने का। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए कि यूरोप जो है एक मैच्योर डेस्टिनेशन है जो अपने डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल के पे चल रहा है, और नेचुरली जो है जब डिक्लाइन स्टेज पे है तो इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एशिया और पैसिफिक रीजन जो है अपने डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल के ग्रोथ स्टेज पे है, तो ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट जो कि काफ़ी छोटे हिस्सेदारी को रखते हैं, उन्होंने भी अपनी ग्रोथ दिखाई है क्योंकि टूरिस्ट जो है नए डेस्टिनेशंस को प्रेफर कर रहे हैं और वो अमेरिका और यूरोप को छोड़ के नई जगहों पर जाना चाहते हैं, न्यूअर डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसमें जो मैंने पहले भी कही थी, जो नई टाइपोलॉजीज़ ऑफ टूरिज़्म हैं, नए फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म हैं, उनकी जो तेज़ी से विकास हुआ है, जिसे हम पहले निश टूरिज़्म कहते थे या स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़्म है, तो ये स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़्म या निश टूरिज़्म जो है, इसने भी लोगों को कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया है, जिसके कारण लोग जो है अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक और नए रीजन्स के अंदर जा रहे हैं एंड ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स विच वर अर्लियर लिमिटेड टू beach tourism or cultural tourism. Now they are exploring more types of tourism, more forms of tourism and newer destination. तो जिन्हें कहना चाहिए एक्सप्लोरर टेंडेंसी जो है वो टूरिस्ट्स के अंदर बढ़ रही है। दे आर नो मोर साइकोसेंट्रिक, दे आर मोर inclined they are more allocentric nowadays. So far we have discussed about the tourist arrival only. Now we are shifting our focus to tourist receipt, यानी कि कितने आय की प्राप्ति हुई है पर्यटन से ग्लोबल टूरिज़्म में, और हम इसको वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे और रीजन वाइज भी इसका एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। टूरिज़्म रिसीट जो है वर्ल्ड की, मैंने यहाँ पर 2014 से 2019 का डाटा प्रेजेंट किया है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। वर्ल्ड का 2014 में जो परसेंटेज चेंज था, या जिसे आप कह सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ था इन परसेंटेज इन रियल टर्म्स, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दो तरीके से आप परसेंटेज चेंज को ले सकते हैं। एक तो इन रियल टर्म्स और इन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर में लेने का के साथ जो प्रॉब्लम जुड़ी हुई है वो ये है कि यूएस डॉलर अगर हम लेते हैं एज ए परसेंटेज चेंज, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इनकम इन्फ्लेटेड दिखती है क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्गर है। तो हम इन रियल टर्म्स हमने इसको कंसीडर किया है ताकि ये जो एबर्शन है इसको कंटेन किया जा सके, और ऐसा करने के लिए हमने रियल टर्म्स में डाटा को लिया है, कांस्टेंट प्राइसेस ओवर द लास्ट ईयर। बेसिक कंसिडरेशन या क्राइटेरिया।
वर्ल्ड की बात करें हम तो वर्ल्ड 2014 में उसकी ग्रोथ रेट 5.2% रही। इन रियल टर्म्स 2015 में 4.2% रही, 2016 में 2.6% रही, 2017 में 5% रही, 2018 में 4.1% रही, 2019 में 3.8% रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है या परसेंटेज चेंज है इन रियल टर्म्स, इट होवर्स अराउंड 3 to 5%, 3 से 5% के, या अगर हम इसका एक एवरेज लें मोटा मोटी या इन जनरल हम बिना स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन किए करें तो ये 4% के अराउंड निकल के आता है। यूरोप जो है, यूरोप का रिसीट जो है उसमें ग्रोथ रेट जो है काफ़ी इरेटिक रही है, कंसिस्टेंट नहीं है उतनी ज़्यादा। 2014 में 4.3%, फिर 15 में 2.4%, फिर 2016 में मात्र 2%, और फिर 2017 में 7.1%, जो कि पेंट अप डिमांड को, अनरियलाइज डिमांड को शो करता है, जो कि रियलाइज़ हुई 2017 के अंदर, यानी जो पेंट अप डिमांड थी वो रियलाइज़ हुई 2017 में, इसीलिए इतना हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला। 2018 में 4.6% की ग्रोथ रही और 2019 में 4.4% की रही। एशिया पैसिफिक ने 2014 में काफ़ी धीमी शुरुआत की, 1.8%, फिर 3.2% 2015 में, फिर 4.2% 2016 में, फिर 4.4% 2017 में, फिर 8.8% 2018 में, और 2019 में मात्र 1.2%। तो ओवरऑल जो हम इसमें ट्रेंड अगर 2019 को ना कंसीडर करें तो एशिया पैसिफिक ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को दिखाया है, लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है एशिया एंड पैसिफिक के केस में। अमेरिकाज़ की बात करें तो अमेरिकाज़ की ग्रोथ रेट पहले 2 ईयर में 2014 में 8.3%, फिर 8.8%, फिर 2016 में 2.7%, और उसके बाद लगातार घटती चली गई है। 2018-19 तो 17 में मात्र 0.9%, फिर 0.4%, और 2019 में 0% है। तो हमारे को एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है अमेरिका के केस के अंदर। पर्यटन में जो रिसीट है, जो आय है अमेरिकास की, वो लगातार घट रही है। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका, अमेरिकास का? इसको हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अफ्रीका, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका का शेयर लगातार घटता बढ़ता रहा है। 2014 में 6.1%, फिर नेगेटिव ग्रोथ हुई 2015 में -1.3%, फिर 2016 में 4.3%, फिर 2017 में 8.3%, यानी कि इन 2 सालों में तेज़ी से बढ़ता है और फिर घट जाता है, 1.1% रह जाता है, और 2019 में 2.2%। तो पूर्णतः इरेटिक ट्रेंड नज़र आ रहा है अफ्रीका के केस में। हम कोई क्लियर लाइन ग्रोथ की या डिक्लाइन की नहीं देख रहे हैं अफ्रीका के केस में। तो द मूवमेंट इज साइडवेज, कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट ने मोर और लेस हाई ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है रिसीट में। शायद ये जो हाई ग्रोथ रेट है इनकी करेंसी, स्ट्रॉन्गर करेंसी को दिखाती है। ये लाइन काटनी पड़ेगी बोलूँ। तो मिडल ईस्ट 10.4%, देन 8.1%, देन 2.4%, देन 13.6%, देन 6%, देन 9.3%। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ रेट अगर हमारे को कहीं को देखने को मिल रही है तो मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है।
जिसने एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की है कई सालों में। 2 डिजिट ग्रोथ रेट इन 2014, देन 2 डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ रेट इन 2017, देन ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ रेट इन 2019। हम लोग 3-10 के काफ़ी करीब है, डबल डिजिट ग्रोथ के काफ़ी करीब रहा 2019 में, और डबल डिजिट ग्रोथ रही 2017 में भी और 2014 में भी। इसके अलावा 2015 भी बहुत अच्छा रहा। तो सिवाय 2016 के इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एक क्लीन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है मिडल ईस्ट ने इन टर्म्स ऑफ रिसीट। शायद ये इसका कारण है कि नए जो मॉडर्न सिटी बेस्ड टूरिज़्म मिडल ईस्ट में उभर के आया है, जिसमें हम मुख्य तौर पे शारजा का नाम लेते हैं या दुबई का नाम लेते हैं, जहाँ पे लग्जरी हाई एंड टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो शायद इन रीजन्स की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ही जो है ये इनकम के अंदर जो है हाई ग्रोथ रिकॉर्ड हो रही है मिडल ईस्ट में। अगर हम इनमें से कुछ अगर ट्रेंड निकालने की कोशिश करें अबाउट डाटा से, तो हमारे को जो पहली बात है कि जो ग्लोबली रिसीट के अंदर ट्रेंड है वो इन लाइन है विद द अराइवल ट्रेंड। यानी जैसे जैसे अराइवल में ग्रोथ हुई है या अराइवल घटा है, वैसे वैसे जो है रिसीट पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट जो है काफ़ी एक्सपेक्टेड सा लगता है, क्योंकि हमें पता था कि अराइवल अगर बढ़ रही है तो रिसीट भी बढ़ेगी, और अराइवल अगर कम हो रहा है तो रिसीट भी उसी हिसाब से डिक्लाइन हो रही है। अमेरिका के बारे में हम क्लियर कट कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी जो है डिक्लाइन की स्टोरी है। तो 2017 के बाद तेज़ी से यहाँ पर टूरिज़्म रिसीट में डिक्लाइन हुआ है। हालांकि इसका कोई क्लियर कट रीजन नज़र नहीं आता, बट द स्टोरी सो दैट देयर इज़ अ मेजर डिक्लाइन, there is a substantial decline in the arrival as well as in the receipts from tourism. एशिया पैसिफिक जो है उसकी हिस्सेदारी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रही है, और उसने जो है अपने अराइवल्स के साथ साथ जो है रिसीट के अंदर भी वृद्धि दर्ज की है। अफ्रीका के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, जबकि मिडल ईस्ट जो है उसने हाई ग्रोथ रेट दिखाई है। 2016 के अलावा जो है सब जो है ईयर्स में इसकी ग्रोथ रेट जो है अच्छी रही है, अबव 5% रिकॉर्ड हुई है, अबव 5% रिकॉर्ड हुई है। तो ये दिखाता है कि मिडल ईस्ट जो है उसकी इनकम काफ़ी हाई रही है। उसका रीज़न शायद यही रहा है कि यूएई हुआ, शारजा हुआ, दुबई हुआ, जो यूएई की सिटीज़ हैं, शारजा है, दुबई है और सऊदी अरेबिया है, इनके अंदर टूरिज़्म जो है काफ़ी बढ़ा है, और ये जो टूरिज़्म है वो भी हाई एंड मार्केट का टूरिज़्म है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा शो होती है। जबकि एशिया एंड पैसिफिक के केस में हाई एंड टूरिज़्म की बजाय लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे या लॉन्ग हॉल टूरिज़्म के कारण जो एक टेंडेंसी रहती है कि जब हम लंबी दूरी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो हम वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्टे करते हैं। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे के कारण जो है एशिया एंड पैसिफिक के केस में जो है ये रिसीट जो है बढ़ा हुआ नज़र आता है, ये ज़्यादा नज़र आता है बढ़ता हुआ, क्योंकि लॉन्ग हॉल टूरिज़्म, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज़ कॉजिंग द ग्रोथ इन द रिसीट इन एशिया एंड पैसिफिक। नेचुरल सी बात है कि एशिया एंड पैसिफिक के लिए जो मेन मार्केट है वो यूरोप है, तो यूरोप अगर चाइना को छोड़ दें तो यूरोप ही है। तो यूरोप से जो लोग आते हैं वो लंबे समय तक एशियन डेस्टिनेशंस में टाइम बिताते हैं, जिससे कि उनका एक्सपेंडिचर जो है कंपैरेटिवली ऑन द हायर साइड शो होता है। जैसा कि हमने टूरिस्ट अराइवल के केस में किया था, यही चीज़ मैं टूरिस्ट रिसीट के केस में भी आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट शेयर में
क्या बदलाव आया है 1999 से लेके 2019 के बीच में। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट शेयर किसी एक दिन में नहीं बढ़ता या घटता है, ये सालों का समय लगता है। तो मैंने 1999 का डिकेड लिया है और 2019 का लिया है, दोनों के बीच में 20 साल का अंतर है। तो इस 20 साल के अंतर में क्या बदलाव हमें देखने को आया टूरिज़्म रिसीट में, और ये जो हम बदलाव देखेंगे इसका हम एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि ये क्या बदलाव हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, हरा जो हिस्सा है हमें नज़र आ रहा है वो यूरोप का है एज़ यूजुअल, और उसमें हमारे को 1999 में टूरिस्ट रिसीट के अंदर 49% हिस्सेदारी अकेले यूरोप की नज़र आती है। यूरोप जो है सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा पाई, सबसे बड़ा चंक लेके बैठा हुआ है। उसके बाद जो रेड हिस्सा है वो हमारा एशिया पैसिफिक है, जो 17% के साथ तीसरे स्थान पे है। पर दूसरे स्थान पर जो है वो है अमेरिकाज़ के 19% हिस्सेदारी थी टूरिस्ट रिसीट में, टूरिज़्म रिसीट में सॉरी। और उसके बाद अफ्रीका की हिस्सेदारी 2%, 3% हिस्सेदारी मिडल ईस्ट की थी। अब हम पिक्चर को आगे ले जाते हैं और 2019 में देखते हैं कि इसके अंदर क्या बदलाव आया। हाँ, अब हम बात करते हैं कि 2019 में क्या बदलाव आया। तो 2019 में जो हिस्सेदारी है यूरोप की वो घट के 38% रह गई, जबकि एशिया पैसिफिक रीजन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो गई, और अमेरिकाज़ की हिस्सेदारी 23%, 3% अफ्रीका की और मिडल ईस्ट की 4%। तो हमारे को कई बदलाव देखने को मिले इसके अंदर। जो 29% हिस्सेदारी थी अमेरिका की वो घट के 23% रह गई। जो 49% हिस्सेदारी थी यूरोप की वो घट के 38% रह गई। और इन दोनों का जो लॉस हुआ उसका फ़ायदा जो है मेनली एशिया पैसिफिक को हुआ, और उसके बाद मिडल ईस्ट को इसका फ़ायदा मिला है। कि इस डाटा के पीछे जो कारण हैं उनका विश्लेषण और इन ट्रेंड का विश्लेषण हम अगले स्लाइड में करेंगे। इन निष्कर्षों पर हम पहुंच सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि यूरोप का शेयर जो है वो लगातार घट रहा है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल के ये अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। और जब कोई भी डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल के अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता है तो नेचुरली वहाँ प्राइसेस लो हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की जा सके। ये एक नेचुरल फीचर है किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल में। जब आपकी सेल डिक्लाइन होती है तो नेचुरली प्राइसेस कम हो जाते हैं, जब कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है जो इसके पीछे कारण नज़र आता है वो ये है कि यूरोप के अंदर टूरिज़्म को एज ह्यूमन राइट कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ फ्री या बहुत चीप हैं। और तीसरा रीज़न जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टूरिज़्म इन यूरोप इज़ इंट्रा रीजनल इन नेचर, और वो वीकेंड पे होता है। एक यूरोप का व्यक्ति उठता है, यूरोप में यूके का एक व्यक्ति उठता है और वो वीकेंड पे जो है फ्रांस विज़िट करता है, पेरिस विज़िट करता है, या एक फ्रांस का व्यक्ति उठता है और वो जर्मनी में घूमने चला जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इसलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होने के कारण जो है उनका जो शेयर इन रिसीट है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो लगातार घट रहा है। वो लंबी दूरी के डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रहे हैं। बाहर से टूरिस्ट, अमेरिका से टूरिस्ट, एशिया से टूरिस्ट उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर जो टूरिज़्म यूरोप में रिकॉर्ड हो रहा है वो इंट्रा रीजनल इन नेचर है। अगर हम बात करें टूरिज़्म रिसीट और अराइवल के कंपैरिजन में, तो भी हमारे को ये बात देखने मिलती कि अराइवल में 59% है बट रिसीट में 49% है। 2019 में अराइवल में ये
49% है, बट रिसीट में 39% रह जाता है। सॉरी, इन 2019 अराइवल में ये 51% है, बट ये रिसीट में 39% है। ये दिखाता है कि यूरोप जो है एक चीपर डेस्टिनेशन है और वहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है टूरिस्ट का वो बहुत शॉर्ट है। ये दो मुख्य कारण हैं कि यहाँ पे जो है रिसीट इन कंपैरिजन टू अराइवल काफ़ी कम है। इसी तरह अमेरिकाज के शेयर जो है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 डिकेड्स में। 6% के करीब इसमें गिरावट आई है। सिमिलरली अमेरिका शेयर हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन इन लास्ट 2 years एंड इट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 6%। इसमें 6% की गिरावट आई है। द रीजन विच हैज़ क्लिंच्ड देयर शेयर इज़ एशिया एंड पैसिफिक, यानी जो इनके हिस्से में नुकसान हुआ यूरोप के हिस्से में अमेरिका में, उसको अपनी मुट्ठी में लिया है एशिया एंड पैसिफिक ने, जिसका शेयर बढ़ के 17 से 30% हो गया है। अमेरिका जो है, अमेरिका में जो ये डिक्लाइन आया है वो ये है, इसका मुख्य कारण है कि यूरोप के टूरिस्ट जो मुख्य रूप से अमेरिका विजिट करते थे, अब उन्होंने अपना रुख जो है एशिया पैसिफिक और अफ्रीका और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ कर दिया है। ठीक है, परंतु अगर हम कंपैरिजन करें अराइवल और रिसीट में, तो हमें नज़र आता है कि अमेरिका के अराइवल के कंपैरिजन में रिसीट कहीं ज़्यादा है, और उसके 2 कारण हमारे को नज़र आते हैं। एक तो कि अमेरिका में जो 2 कंट्रीज़ हैं, कनाडा और यूएसए, जो मेजर चंक है अमेरिकाज में टूरिज़्म का, इन 2 कंट्रीज़ के हिस्से में आता है और ये दोनों महंगी हैं। दूसरी, लॉन्ग हॉल टूरिज़्म, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है काफ़ी दूर से आता है, तो वो टूरिस्ट जो है लंबे समय तक यहाँ रहता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अर्निंग जो है इन कंपैरिजन टू अराइवल बेटर नज़र आती है। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसका शेयर जो है 17% से बढ़कर 30% के करीब हो गया है। एक इंक्रीज़ है 13% का, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ये रीजन जो है आने वाले समय में भी अपने मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाता रहेगा। काफ़ी डाइवर्सिफाइड रीजन है, इसमें हर प्रकार का टूरिज़्म मौजूद है, और अभी ये जो एक्सप्लोरेशन की स्टेज, जो एक्सप्लोरेशन है ये ख़त्म नहीं हुई है। नए नए डेस्टिनेशंस निकल के आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और वो टूरिस्ट को वर्ल्ड ओवर जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट का शेयर जो है थोड़ा सा ज़्यादा अफ्रीका से, और अगर हम इसके अराइवल के कंपैरिजन में देखें तो इसका रिसीट जो है थोड़ा ज़्यादा है। जितने यहाँ अराइवल हैं उससे ज़्यादा इनका रिसीट है। तो ये जो रिसीट ज़्यादा होने का कारण है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। हम सभी जानते हैं कि जो डेस्टिनेशंस मिडल ईस्ट में निकल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, वो कॉस्टली डेस्टिनेशंस हैं। जो मैंने अब तक बातें कही हैं विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, तो उनको मैं रीएम्फसाइज करने के लिए एक और डाटा चार्ट प्रेजेंट करना चाहूँगा आपके सामने। वो है रिसीट पर अराइवल की प्रति आगमन के हिसाब से कितनी आय दर्ज की गई, यानी कि एक अराइवल पे कितनी अर्निंग होती है। तो यूरोप के केस में 1999 में देखें तो 640 था, 2009 में 910 था, और 2019 में 770 है। एशिया पैसिफिक में ये 810 और फिर बढ़ जाता है 1120 और फिर 1230, यानी लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मोर एंड मोर वाली बात है, यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकाज़ में 1130, फिर 1360 और फिर 1560, तो अमेरिकाज़ भी लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। अब इसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि अराइवल के केस में इसमें डिक्लाइन है, बट अर्निंग में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अफ्रीका के केस में जो है 430, 620 और 530 है, यानी कोई क्लियर कट ट्रेंड इसमें नज़र नहीं आता, बट ये एक चीपर डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आता है। यहाँ पे और रीजन के हिसाब से ये सबसे सस्ता रीजन है। यहाँ पे टूरिस्ट का एक्सपेंडिचर सबसे कम है।
मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे 790, 870 और 1340, यानी कि मिडल ईस्ट जो है लगातार महंगा होता नज़र आता है, ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट एक्सपेंडिचर नज़र आती है। उसका रीज़न हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें मुख्य तौर पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है वो अमेरिकाज़ के केस में है कि वो अपना शेयर लूज़ कर रहा है अराइवल में, बट उसकी अर्निंग लगातार बढ़ती जा रही है पर टूरिस्ट। तो इसके दो रीज़न हमने देखे, हमने डिस्कस किए प्रोबेबल रीज़न जो है, और वो रीज़न ये है कि इनके यहाँ पर जो है टूरिस्ट का स्टे ड्यूरेशन हाई है अमेरिकाज़ के केस में, और दूसरा ये डेस्टिनेशन कॉस्टली डेस्टिनेशन भी है। मिडिल के ईस्ट के केस में भी यही है कि जो नए वहाँ पे सिटी बेस्ड टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, जो नया टूरिज़्म आ रहा है वो हाई एंड टूरिज़्म है और वहाँ काफ़ी कॉस्टली है, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर टूरिस्ट का ज़्यादा नज़र आता है पर अराइवल। पर इन सब में जो रियल विनर है वो एशिया पैसिफिक रीजन है, जो कि लॉन्ग हॉल टूरिज़्म से और लॉन्गर स्टे ऑफ टूरिस्ट से और हायर एक्सपेंडिचर से बेनिफिट हो रहा है और लगातार कंसिस्टेंटली हायर ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, यूरोप जो है लोअर साइड में है, इसके रीज़न हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये जो हमारा टॉपिक है टूरिस्ट अराइवल एंड रिसीट एट द ग्लोबल लेवल एट इंटरनेशनल लेवल, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।